Hello students, today we are going to study about the structure of a bacterial cell. Usually a bacterial cell consists of cell wall, flagella and protoplast. Protoplast again is made up of cytoplasm and the nuclear body, which is also called as nucleoid in bacteria. Other than cell wall and protoplast, there is a special region, a compartment that is called periplasm. Cell wall और प्रोटोप्लास्ट, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक एरिया होता है, एक स्पेस है. दैट गैप इज फिल्ड विद aqueous fluid. That fluid consists of some proteins and enzymes and fills the gap between the cell wall and the plasma membrane. So this is called as periplasm. Peri means surrounding, on the periphery. It is present on the periphery of plasma membrane. So this is the structure of a normal bacterial cell. Bacillus type, and it is having a single flagella. In this bacterial cell, there are many components. If we start from outside, then there is cell wall, cytosol and flagella. The cell wall is in orange color, green color, this part, and the flagella is this one. One flagella is present in this bacterial cell, and the other orange color organs are पिलाई और फिम्ब्रेई. ये जो है ये क्या है, पिलाई और फिम्ब्रेई. These are very small in size in comparison to flagella. The remaining part, this blue color line, is showing plasma membrane. Inner to the plasma membrane is cytoplasm. This cytoplasm plus nuclear body, that is nucleoid, combine to form the protoplast. This blue color coiled structure is nucleoid. It is single DNA present in circular form. Free ends इसमें absent होते हैं. And in this cytosol, cell organelles are absent and some other cell inclusions are present, like ribosomes, singly present or present in form of group with mRNA, क्योंकि ribosomes का function क्या है, synthesis of mRNA to tRNA. So this mRNA joins the two subunits of ribosome and forms the what? Polyribosomes. Poly means many. Along with these polyribosomes, there is presence of a special structure, mesosome. Mesosome is attached to the nucleoid, and ये क्या होता है? It is invagination of plasma membrane. These black color dots are showing the lipid globules. This pink color is RNA, and on the plasma membrane these red color bumps are respiratory enzymes. This is glycogen crystals. This brown color is showing plasmid. On the outer surface, there is presence of pink color dots. These pink color dots shows the mucilage cavity, on mucilage covering on the bacterial cell. Some gas vacuoles are also present in the cytosol. Now we will discuss it in detail.
The first structure, cell wall. Cell wall is outermost rigid covering of the cell. Present होती है cell में, कहाँ पे? बाहर, which provides shape and protection. Cell wall present है इसके अंदर, इसीलिए इसमें क्या है? बैक्टीरियल सेल की एक पर्टिकुलर शेप है. इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, बट जो एनिमल सेल्स हैं उनकी शेप नहीं होती. वाई? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो शेप मेंटेन नहीं कर सकती. It protects against mechanical injury, pathogens and chemicals attack. The cell wall also protects cell from bursting in hypotonic medium. Hypotonic medium में क्या होता है? There is higher concentration of water than the bacterial cytosol. तो higher concentration of water होगी बाहर, तो उससे क्या होगा? Water inside move करेगा, ठीक है. और जब वाटर बैक्टीरियल सेल के इनसाइड मूव करेगा तो क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंक्रीज होगी साइज में, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज होती है इट बिकम टर्जिड एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल. बट क्योंकि सेल वॉल क्या है? रिजिड. तो रिजिड होने की वजह से ये क्या करेगी? इसको जो साइज है उससे एक्स्ट्रा एक्सपेंड होने नहीं देगी, फ्लेक्सिबल नहीं है वो, ठीक है. Cell wall is three-dimensional structure. It is made up of glycopeptides. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो, जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड. So it is basically made up of proteins and polysaccharides combined products. Additionally, polysaccharides, lipids, amino acid and proteins are present in small amount. इसके इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा ये कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं. अब हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो डिस्कस किया था. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल वाज 2 लेयर्ड, वाइल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर्ड थी और थिक थी. तो इसके अंदर 2 लेयर्ड और वेवी सेल वॉल है डेट कंटेन्स म्यूरिन, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें क्या थे? टाइकोइक एसिड. इट कंटेन्स म्यूरिन एंड ग्लाइकोपेप्टाइड इन इनर लेयर. जब 2 लेयर्स हैं तो एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर. तो जो इनर लेयर है अंदर वाली साइड जो है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन एंड ग्लाइकोपेप्टाइड, while the outer layer that is also called as capsule, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है दिस लेयर ऑफ सेल. This inner layer is made up of murin and glycopeptide, while outer layer that is called capsule, it is made up of lipopolysaccharides and proteins. Here the capsule performs some special functions. It prevents the entry of chemicals in the cell, help to attach bacteria with specific host cell. अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो मोस्टली पैथोजेनिक थे बैक्टीरिया, और इनके अंदर पैथोजेनिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कैप्सूल. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में द सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड एंड स्मूथ. उसमें वेवी है, इसमें स्मूथ है. देयर इट कंटेन्स टाइकोइक एसिड एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन. तो जो टाइकोइक एसिड है, दिस टाइकोइक एसिड प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल एंड दे मेंटेन्स द सेल एट लो पीएच. लो पीएच होने पर भी जो सेल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, उसके साथ साथ जो टाइकोइक एसिड है वो इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होने देता, क्योंकि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड्स हैं इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है विथ चेंज इन टेम्परेचर, पीएच. ठीक है. सो द टाइकोइक एसिड हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एट लो pH. So this is all about cell wall, which is of 2 layer here, this one and this one. Now the next part is mucilage. Mucilage is this covering.
This pink color shows the mucilage covering. So mucilage is present outside the cell wall and it is covering the whole bacterial cell. म्यूसिलेज और स्लाइम क्या होता है, इसमें कुछ पॉलीसेक्राइड्स और पेप्टाइड्स होते हैं और सेलुलोज नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि क्या है विद वाटर दे फॉर्म्स अ म्यूकस लाइक कंपाउंड. और जो म्यूकस है वो क्या करता है कि इसमें वाटर का लॉस नहीं होने देता सेल के अंदर इन एक्सट्रीम कंडीशंस, डेसिकेशन कंडीशंस. The cell wall surrounded by thin loose sheath of slime and it is composed of non-cellulosic homo-heteropolysaccharides or polypeptides or both. अगर जो म्यूसिलेज की शीट है वो थिक होती है, ठीक है, then it is called capsule. But if it is less than 0.2 micrometer thick, then it is called microcapsule. The capsulated bacteria are usually non-flagellated. उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं जिनके अंदर म्यूसिलेज की कवरिंग जो है वो थिक होती है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग? द म्यूसिलेज कवरिंग प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट केमिकल्स, डेसिकेशन एंड फेगोसाइट्स अटैक. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बैक्टीरिया को हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए. इट हेल्प्स टू होल्ड द सेल आफ्टर डिवीजन. सेल डिवीजन हो गया, ये माइटोसिस हो गया, उसके बाद जो दो सेल्स हैं उनको आपस में होल्ड करके कौन रखता है? म्यूसिलेज. जो ग्रुप बन जाते हैं ना, ग्रुप्स बताए थे मैंने आपको, टाइप के अंदर ग्रुप से अटैच्ड होती है. सो ऑल द सेल्स आर अटैच्ड ड्यू टू म्यूसिलेज. नॉट, यहाँ पे प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस नहीं है जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं. यहाँ पे क्या है? द म्यूसिलेज इज मेकिंग द सेल्स इन ग्रुप्स. इट सर्व एज स्टोरेज प्रोडक्ट. स्टोरेज प्रोडक्ट कैसे? इसके अंदर वाटर जो है वो रिटेन करके रह सकता है, वाटर लॉस नहीं होता, ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ सम कंपाउंड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. इट टेक्स पार्ट इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है. इससे क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बैक्टीरियल सेल के, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है जो कि ड्यूरिंग देयर न्यूट्रिशन रिलीज होते हैं. ग्लाइकोकैलेक्स. अब म्यूसिलेज के बाद ये दूसरा कवरिंग है ग्लाइकोकैलेक्स. इसमें क्या होता है? ग्लाइकोकैलेक्स है क्या? इट इज़ अ फाइब्रस शीथ फाउंड इन सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया में मिलती है, सब में नहीं है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. सो इट इज़ अनदर स्ट्रक्चर अदर देन सेल वॉल एंड म्यूसिलेज. नाउ सेल वॉल के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल जैसी प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स की सेम होती है. इसके अंदर क्या है? देयर इज बायोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चैनल्स और एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आप लोगों ने पढ़ी है वो वाली. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है? प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट में क्या? दो पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड. तो पहले हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म क्या है? ग्रेन्युलर है, कोलॉइडल है एंड इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. ग्रेन्युलर और कोलॉइडल मीन्स इसमें ये इस तरीके से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है और अदर ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. एंड इट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म. ऑल्सो इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं वो एब्सेंट हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द साइटोसोल. साइक्लोसिस इज एब्सेंट. साइक्लोसिस यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में बहुत कॉमन होता है. उसमें क्या होता है, जो साइटोसोल है इट मूव्स अराउंड इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, टू transport different compounds and the organelles from one place to another. But cyclosis is absent in bacteria.
The cytosol has high osmotic pressure comparison to other eukaryotic cells. The bacterial cell is having high osmotic pressure और जिन सेल का high osmotic pressure होता है वो extreme conditions में survive कर सकती हैं. Now in the cytosol, membrane bound cell organelles are absent, but there are some other cell inclusions, or we can say organelles are found but not membrane bound in bacterial cytosol, such as gas vacuoles. Gas vacuoles क्या होते हैं? These are hexagonal submicroscopic structures. ये देखो ये छोटे छोटे gas vacuoles present है, which are surrounded by a proteinaceous membrane, and they name से ही suggest हो रहा है they contains the gas. So by because of the presence of gas, जिस भी चीज़ में जैसे एयर बलून में गैस होती है तो उससे क्या होता है वो फ्लोट कर सकता है, उसके अंदर क्या आ जाती है बायोन्सी आ जाती है. सो इट provides the buoyancy to the cell and regulates the buoyancy. Also it protects against intense light. Intense light से कैसे प्रोटेक्ट करता है? by reflecting light. सेकेंड है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इनके अंदर 70s टाइप होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s टाइप होते हैं. 2 सब यूनिट्स हैं इसके अंदर, 50s एंड 30s. और हेलिकली यूजुअली सिंगली भी प्रेजेंट होते हैं, बट बैक्टीरिया का बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है प्रेजेंस ऑफ पॉलीराइबोसोम्स. पॉलीराइबोसोम्स में द स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, दीज आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ बीड ऑन RNA, mRNA. So they forms the polyribosomal structure, जो कि आप लोगों को मैंने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में बताया है. दिस इज polyribosome, polyribosome, polyribosome. So it is very common in bacterial cell. क्यों कॉमन है? क्योंकि इनके अंदर क्या है कि जो mRNA सिंथेसिस है वो साइटोसॉल के अंदर ही हो रहा है सारा, और ये इससे डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. यूजुअली जो सेल डिवीज़न है काफ़ी फास्ट होता है, प्रोटीन्स है वो काफ़ी जल्दी बनते हैं, तो mRNA बनते ही रहते हैं फास्ट. Volutin granules are another type of granular body found in cytosol. They contain reserve phosphate and lipids and basic proteins and RNA. Another cell inclusion is reserve food, जैसा कि आपको मैंने बताया था, lipid globules and glycogen. So it is in form of lipids, proteins, glycogen and alpha polyhydroxybutyric acid bodies are also found, which are called as PHBs. Another structure, that is mesosome. Mesosome are small circular bodies formed by infoldings of plasma membrane, and it consists of coiled plasma membrane, vesicles, tubules and laminae. This is mesosome. Usually one mesosome is present in a bacterial cell, और इसमें ये infoldings of plasma membrane है. इसके साथ साथ इसमें कुछ enzymes और proteins भी present होते हैं. इसके functions क्या क्या है mesosome के? It help in separating the replicating DNA during nuclear division. जब nuclear division होता है तो जो DNA है उसको separate करने में help करता है. And it performs the function analogous to eukaryotic cell mitochondria, क्योंकि इसके अंदर कुछ enzymes है जैसे succinate dehydrogenase वगैरह, तो it is also perform the function of enzymatic synthesis and enzymatic action, and that's why it is also called as chondrioid. माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने के रीजन की वजह से इसको क्या हम बोलते हैं? कॉन्ड्रियोइड. फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड्स, these are found only in photosynthetic bacteria. सब में नहीं है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर है. These are vesicular lamellar thylakoids. जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? थाइलाकोइड्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ ग्रेना. इस तरीके से स्ट्रोमल और ग्रेनल लैमेली होती है. लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है? देयर इज इधर वेसिकल और लैमिला आर प्रेजेंट सिंगली, एंड द पिगमेंट्स आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोबियम.
नाउ आफ्टर साइटोसोल, ये साइटोसोल में थे सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स थे। इसके बाद क्या है, न्यूक्लियोइड। दिस पार्ट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोफोर, क्योंकि ये सारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। इट इज नेकेड, दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स एंड विदाउट न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में डबल मैम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस, जबकि इनके अंदर नेकेड होता है। एंड इट इज लाई फ्रीली इन द साइटोसोल। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट का करेक्टर इज इट इज सर्कुलर इन फॉर्म, दैट इज फ्री एंड्स आर एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो एब्सेंट, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन इज ऑल्सो एब्सेंट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एमाइटोटिक सेल डिवीजन होता है। न्यूक्लियोइड के बाद इसके अंदर अनदर स्ट्रक्चर प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, न्यूक्लियस में जो क्या है जो क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोइड में। तो अदर देन न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम देयर आर प्रेजेंट सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं और कुछ एक जीन्स को वो कोड करते हैं। एंड दे कैरी जीन्स फॉर इधर फर्टिलिटी फैक्टर, resistant factor to some antibiotics, NIF genes for nitrogen fixation. These are found in nitrogen fixing bacteria. So these are plasmids. Plasmids are comparatively very small in size. जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड के कंपैरिजन में दिस इज द साइज ऑफ प्लाज्मिड एंड इट इज ऑल्सो सर्कुलर. इट मे बी attached to the central nucleoid. Then in this condition that is called as episome. That इसका मतलब क्या है, episomes क्या होते हैं? If plasmid DNA temporarily get attached with nucleoid, then it called episome. So देखो, जैसे ये न्यूक्लियोइड का DNA है और ये प्लाज्मिड है, both get attached for some time, then that is called episome. That plasmid is called episome. Now the last part, flagella. Flagella क्या होते हैं? These are motile organs and these are found in motile species only. They arise from plasma membrane from a spherical terminal hook. This is flagella. Here is the hook. Here is the hook and it is attached to the plasma membrane here. ठीक है, so it is attached to the basal body called blepharoplast and passes out through the cell wall. ये देखो, इसके अंदर this is the structure of a flagella. Here is the blepharoplast. Blepharoplast मैंने आप लोगों को बताया था ग्राम स्टेन के अंदर कि 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड 1 रिंग इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 रिंग्स blepharoplast. It is inner to the plasma membrane and there is formation of this structure, that is hook, and from the hook the flagellum is arising. So the hook is passing through the cell wall and plasma membrane. जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, बैक्टीरियल फ्लैजिला में 1+1 का अरेंजमेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में जो फाइब्रिल्स हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9+2 अरेंजमेंट. एंड द बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. सो दीज आर द subunits of flagellin protein which are arranged in spiral manner, spirally coiled manner में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. ठीक है, और सिंगल फिलामेंट अरेंज्ड है इसके अंदर. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे मोनोट्राइकस, if single flagella is present at one end then it is called as monotrichous bacteria. And if one flagella at each end, suppose this is the bacterium, one pole, second pole, so that is called, these are called polar ends, and one flagella on each end, then it is called as amphitrichous. Trichous word is used here for flagella. A bunch of flagella at one pole, then it is called as cephalotrichous. A bunch at both poles of cell,
लोफोट्राइकस. अदर देन फ्लैजिला देयर इज प्रेजेंट पिल्लाई और फिम्ब्रियाई, जो मैंने आपको बताया था. दीज ऑरेंज कलर structures are called pili or fimbriae. These are present throughout the bacterial cell. These are very small in size. जैसे अपने intestinal जो cells हैं उनके अंदर microvilli present होती हैं, उस तरीके से काफ़ी small structure होता है. 0.2 to 0.6 micrometer in length, quite smaller than flagella. These are hair-like, rigid and hollow. जबकि जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला था उसमें क्या था, 1+1 का अरेंजमेंट में फिलामेंट प्रेजेंट थे, सॉलिड था. एंड इट इज़ फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजिलिन प्रोटीन. अप्रॉक्सीमेटली 100 to 400 इन नंबर ऑन द सेल सरफेस, जबकि जो फ्लैजिला है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं नंबर में. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिलाई? पिलाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट हेल्प टू अटैच ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट होस्ट एंड इन द अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ DNA. दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन. सो दे प्ले रोल इन कंजुगेशन इन पेलिकल फॉर्मेशन. पेलिकल एक आउटर कवरिंग होती है. Pili that take part in conjugation are called sex pili, as they are changing the DNA of receptor bacterial cell. ये अभी आपका रिप्रोडक्शन में आएगा, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में. देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मिड जीन. एंड जो पिल्लाई का फॉर्मेशन है बैक्टीरियल सेल पे, पिल्लाई बनेंगी या नहीं बनेंगी, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ प्लाज्मिड एंड द जीन्स प्रेजेंट. सो दैट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज F+ प्लाज्मिड. अभी आपको मैंने प्लाज्मिड्स में बताया था कि जो F फैक्टर वाले प्लाज्मिड हैं वो सेक्स पिलाई के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनके जीन को, हेल्प नहीं करते, उनके जीन को कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. थैंक यू.